Hi my dear students. बेटा today's topic is relation between susceptibility, relative permeability. पिछला क्लास में हम अर्थ मैग्नेटिज्म का एंगल ऑफ डिप, ट्रू एंगल ऑफ डिप, अपेरेंट एंगल ऑफ डिप, उन बीच में रिलेशन हमने निकाला था. नाउ टुडेज आई एम गोइंग टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन ससेप्टेबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी. देखो बेटा क्या हो रहा है. Let us take, I take one magnetic substance like iron, nickel, cobalt, steel. Initially, if I take iron, nickel, cobalt, steel, in that one, all the electrons are oriented in the different directions. If they are arranged in the different direction, the resultant magnetic moment at the initial stage is equal to 0. Initially क्या होता है, तो सब electrons randomly arrange हुए होंगे, तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0 होगा. रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0. नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस मैग्नेटिक सब्सटेंस इन ए मैग्नेटिक फील्ड. लेट अस टेक B naught is called as intensity of मैग्नेटाइजिंग फील्ड. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. तो इसको क्या बोलता हूं, B naught इज नथिंग बट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोल के बोलता हूं. अब मैंने ये मैग्नेट को यहां पुट कर दिया. आई टेकन दैट मैग्नेट इनटू दैट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड B naught. जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है उसमें मैंने पुट कर दिया है. पुट करने के बाद all the electrons comes in the direction of that magnetic field. If all the electrons comes in the direction of magnetic field, one end of that magnet behave as north and another end is behave as south. देखो ये जो head है वो north के north behave करेगा, tail है south के north behave करेगा. That means all the electrons comes in a proper direction and it is having the resultant magnetic moment. Due to the resultant magnetic moment, magnetic lines trace from north pole to south pole outside, south pole to north pole inside. This magnetic field, I name this one as induced magnetic field. इसका नाम मैं बताऊंगा induced magnetic field बोल के बताऊंगा. BI is nothing but induced magnetic field. और intensity of magnetic field. Intensity of magnetic field. Okay, we know that when you take a bar magnet, magnetic field due to bar magnet B is equal to mu naught by 4 pi m by R square या D square. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इज इक्वल टू, देखो B नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H से रिप्रेजेंट कर सकते. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई, ये पोल स्ट्रेंथ है, m बाई D स्क्वायर. ओके, B is equal to mu naught by 4 pi m by D square. H is equal to 1 by 4 pi m by D square. Intensity of magnetic field due to bar magnet is equal to mu naught by 4 pi m by D square. Intensity of magnetizing field is equal to 1 by 4 pi m by D square. अगर इन दोनों को डिवाइड करता हूं, then I get the relation B by H is equal to mu naught. This mu naught represent, it is in magnetic field considered in the free space. That means B naught is equal to mu naught into H. अगर वही फील्ड को मीडियम में कंसिडर किया तो B is equal to mu into H आएगा. Mu is equal to B by H. And we know that relation between permeability in the medium to permeability in the free space is called as relative permeability. Relative permeability. Okay, these are the basic things. अब मैं क्या करता हूं, इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं. नेट मैग्नेटिक फील्ड
बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू क्या लेता हूं मैं, बी नॉट प्लस बी आई। ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड। वी नो दैट B इज इक्वल टू बी नॉट मीन्स व्हाट इज बी नॉट, देखो बी नॉट इज इक्वल क्या है, म्यू नॉट इंटू एच, म्यू नॉट इंटू एच प्लस बी ए बोलो तो क्या है, लेट अस टेक दिस बार मैग्नेट। बार मैग्नेट आपको क्यूबॉइड के नाम दिखेगा, क्यूबॉइड रहा तो इसको वॉल्यूम भी रहेगा, इसका वॉल्यूम भी रहेगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। I is equal to, it is the ratio of magnetic moment per unit volume, ओके ना। इसको ऐसा भी लिखते हैं, लेंथ ऑफ द मैग्नेट इंटू पोल स्ट्रेंथ, वॉल्यूम इज इक्वल लेंथ इंटू एरिया। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए दो फॉर्मूलाज हैं, एम बाई वी, कैपिटल एम बाई वी, या पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ऊपर का मीटर नीचे का मीटर कैंसिल हुआ तो एम्पियर पर मीटर, ओके। नेक्स्ट, ये मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड रहता है, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बी आई इज इक्वल टू बी आई, या आई इज इक्वल टू आई राइट, आई इज इक्वल टू, बट आई सब्स्टिट्यूट दैट वन इज इक्वल टू bi by mu naught. Intensity of magnetization in terms of that B is equal to bi is equal to mu naught into I. Intensity of magnetization in terms of that magnetic field B is equal to mu naught into I. ये वाला bi को मैं यहां पुट करता हूं, that is equal to mu naught into I. अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, I take mu naught as common, mu naught को कॉमन निकालता हूं, H प्लस I। नेक्स्ट टाइम H को कॉमन निकालता हूं, mu naught H को कॉमन निकालता हूं, 1 प्लस I बाई H। I था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, H था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, H था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसको बी नॉट से रिप्रेजेंट करो, H से रिप्रेजेंट करो। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड एज ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी सही बोल के रिप्रेजेंट करते हैं, कोई कई बोलता है, कोई सही बोलता है। देखो बेटा, अब ये फील्ड तुम्हें लग रहा है कि इस पे ये मैग्नेट को यहां रखने के बाद ऐसा लग रहा है कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इन द मीडियम। तो मीडियम के लिए मैंने बताया था B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, तो म्यू इंटू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, 1 प्लस आई। तो यहां पर H कैंसिल हुआ, म्यू बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस आई। The ratio of permeability in the medium to the permeability in the free space is nothing but relative permeability. Okay, but this is the information about that relation between that relative permeability and susceptibility and various things. बेटा अगर तुम न्यूमेरिकल्स अगर पूछता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालो बोले तो ये यूज करो, ससेप्टेबिलिटी और परमेबिलिटी के बीच में रिलेशन पूछता है तो ये निकालो, और इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड के बीच में पूछता है तो ये निकालो। ओके, ये था पूरा का पूरा अर्थ मैग्नेटिज्म का जो टॉपिक है, लास्ट वीडियो और ये वीडियो। बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ओके, ऑल द बेस्ट।